So students, and योगेश जी, तो आपने जो क्वेश्चन अपने हमको पूछे हैं, ठीक है, दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। तो एक बात को ध्यान रखना, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने पूरा कोशिश किया है कि क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ये गारंटी मेरी है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो, ठीक है। मैंने इसमें जो टोटल है, कॉम्पैक्ट है, कनेक्टेड है, क्लोज्ड है, कॉन्वेक्स है और कॉन्केव, ये जितने भी टाइप के आपके फंक्शन है ना, ये सारे मैंने कवर कर रखे हैं। लास्ट तक इसको छोड़ना मत। आपने तो क्वेश्चन हमसे जो पूछे थे कॉन्वेक्स और कॉन्केविटी फंक्शंस के बारे में पूछे थे, इक्वेशंस के बारे में पूछे थे, लेकिन मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी आपको सारे क्लियर किए हैं। ओपन सेट, क्लोज सेट, जितना भी होता है सेट के बारे में भी सारा डिस्कस किया है। इसको छोड़ना मत, लास्ट तक देखना। और मैंने अभी तक जितने भी कंपटीशन में आपका नेट है, गेट है, कहीं भी जो भी क्वेश्चन पूछे हैं वही क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं। If you will study like this, then this is my guarantee you will get success in your life. Okay? So let us start. So what are the convex and concave function? A function that has an increasing first derivative bends upward is known as convex function. On the other hand, if the function decreasing first derivative is known as concave function. So this is a very simple example. If you do not understand, at first you will derivative of the function twice. If it is greater than 0, then it means that this is convex. If it is less than 0, then this is the concave. Okay. So आपको करना क्या है, डबल डिफरेंशिएट करना है। एग्जाम्पल, लेट अस द एग्जाम्पल fx is equal to 3x square plus 7x minus 9. This is your example. So f dash x means differentiate with respect to x. So this means d f of x upon dx is equal to 3 2 6, 6x, and this is plus 7. So this is the first derivative with respect to x. Now again differentiate with respect to x. It means that this time d square f of x upon dx square. It means that double differentiate. This time you will get 6. So that is greater than 0 at any condition. It means that this function, the given function is convex. It means that this is the convex. Now second example, this. Suppose you have this example. So at first differentiate with respect to x. It means that you will get 9 2 18 minus 18x, and differentiate with respect to x minus 1. You must remember d upon dx x की power n is equal to nx n minus 1. Okay. So d upon dx x की power 1 is equal to 1x 1 minus 1 is equal to 0. It means that 1. Okay. Similarly, dx x square is equal to 2x. I think that you understand. Okay. So now after differentiate we get minus 18x minus 1. Again you will differentiate twice with respect to x. dx square is equal to आपको क्या मिलेगा, minus 18. So this is less than 0 at any condition. It means that this is the concave. This is the concave. So this is the first example. Okay. Now in your exam, suppose they have asked something different. Find the interval in which condition the function is concavity or convexity. So at first, suppose you have this example, f of x is equal to x cube minus 3x plus 2. At first double differentiate, you have again f of x is equal to x cube minus 3x plus 2. This is your function. Differentiate df of x upon dx is equal to 3x square minus 3. Again differentiate d square f of x upon
dx square is equal to 3 2 ja 6x. Now then is equal to 0. Then is equal to 0. It implies that x is equal to 0 is the root, is the only root. You have only one root. Here you have only one root. Then what we have written? X is equal to 0, that is the root. Calculate intervals from the root. Okay, calculate interval from the root. So this is your x axis and this is your y axis. So one root x is equal to 0 you have got. Okay, so your interval is, this is infinite, this is minus infinite. So there are two interval. One interval is this and second interval is this. Means 0 to infinite and second is minus infinite to 0. So you have two interval. Now substitute the point from each interval in the second derivative. So this is your second derivative. You will substitute. Let x is equal to minus 1. Minus 1 is here. Let x is equal to minus 1. If you will substitute in your second derivative here, then you will get minus 6. So this value is less than 0. It implies that if any number, any point, if you are putting any point here and you are getting negative, it means that this is the condition of concavity. That is the condition of concavity. Now suppose this again, if you will put x is equal to 1, if you will put x is equal to 1, then double differentiate, then you are getting my positive. At this condition you are positive. You can also check at 2, at 3 or something. Okay, so you are getting, it means that this is the convexity. This is the convexity. I think that you understand. Very, very simple. Suppose I will take another example. Okay, I will take another example here. Another example. Very, very simple. आपने क्या करना है? Suppose you have this example. Question f of x is equal to in 3x square plus 12. This is your example. In means log. Actually this is log 3x square plus 12. Now you have to find. So you must also remember d upon dx. Log x is equal to 1 upon x. Okay. So at first you have to differentiate f dash x is equal to, differentiate 1 upon 3x square plus 12. Then again this is not x, again differentiate this one. So you will get 3 to the 6. Okay, it means that this is 6x upon 3x square plus 12. If you will take common, 3 to the 6 upon 3 on the 3, 3 4 the 12. Okay, now again differentiate with respect to x. Now you must also remember d upon dx f1x upon f2x is equal to f2x into d upon dx f1x minus f1x d upon dx f2x upon f2x whole square. That is your formula. So we will use first function, second derivative, this means 2 minus second function 2x, first derivative means 2x, again differentiation of this is equal to 2x upon is whole square of x square plus 4. This is your answer. Now calculate 2x square plus 4 to the 8 minus 2 to the 4 x square upon x square plus 4 whole square. So this is, take minus 2 outside, then you are getting x square, this and this is equal to minus 2x square.
सो -2 आउटसाइड मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर. So that is your answer after differentiation. Okay. Then after then what will you do? इसके बाद आपको क्या करना है? Very very simple. Is equal to 0. मैंने आपको क्या बताया? डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0. आप 0 कर दो. It means that this is equal to 0. X square minus 4 is equal to 0. It implies that x square is equal to 4. It implies that x is equal to plus minus 2. So you have x is equal to plus minus 2. Now draw the graph. Okay, so this is 0, this is 2, this is minus 2, and this is infinite, this is minus infinite. Okay, so at first you have this interval, then you have this interval, then you have this interval. So you have three interval. First interval is minus infinite to minus 2, and second interval is minus 2 to 2, and third interval is 2 to infinite. Now check, take any value. Suppose we are taking minus 3. If we will put minus 3 here, so x square means a positive. X square means a positive. If we will take any value, that will be positive. Okay, so suppose we are taking minus 3. 3 3 is 9. 9 minus 4 is equal to positive. And if this value is very big, suppose minus 9, minus 10, minus 100, in this condition also the value is very big. Okay, so your value it is big means this will be also positive and this is also, this is positive. आपका ये क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि क्या है? आपका बाहर से होल स्क्वायर है. सो दिस इज अ होल स्क्वायर फ्रॉम आउटसाइड. तो आपका क्या हो जाएगा? ये तो पॉजिटिव हो जाएगा. दिस इज पॉजिटिव and this is also positive because interval is -2 to minus infinite to -2. तो आपका क्या है? ओपन इंटरवल है. ठीक है, -2 हम नहीं ले रहे हैं. तो आपका इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा. ठीक है, फिर अब देखो मैं एक कंडीशन रख रहा हूं. मैंने बोला आपको चेक करना है. मैंने बोला आपसे, आपको अगर नहीं दिख रहा है सपोज, मैंने बोला x इज लेस देन -2 एंड x इज ग्रेटर देन 2. यहां पर चेक करो, x इज ग्रेटर देन 2. यहां पर कोई चेक पॉइंट ले लो 3, और x इज लेस देन -2. यहां पर पॉइंट ले लो -3. इन दोनों पॉइंटों को रखो. देखो आप क्या मिल रहा है आपको. ठीक है, पहली बात, कॉन्वेक्सिटी का मतलब क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए. अब आप देखो, अगर मैं वैल्यू 3 रखता हूं, सपोज आई विल टेक 3, इन दिस कंडीशन दिस वैल्यू इज ऑल्सो, बिकॉज स्क्वायर मीन्स पॉजिटिव और होल स्क्वायर मीन्स पॉजिटिव, तो ये आपका टोटल पॉजिटिव आएगा. अब बाहर से क्या है? माइनस है, नेगेटिव इज फ्रॉम आउटसाइड. तो यानी कि इस पूरे इंटरवल में आपका क्या हो जाएगा? हर कंडीशन में आपको नेगेटिव मिलेगा. योर एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन. इट मीन्स दैट फॉर एक्स इज लेस देन -2 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 2, it is concavity. And now second is -2 to 2 for this condition. अब आप देखो, यहां से कोई भी पॉइंट उठाओ, यहां से 0 उठाओ, सपोज कोई भी उठाएंगे आप, आपको हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा. फॉर दिस कंडीशन, फॉर दिस इंटरवल, दिस इज कॉन्वेक्सिटी. ठीक है, वेरी सिंपल. आपको ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि find the interval. Either they will give the interval and they will ask that find the convexity and convexity and और आपका concavity, या वो बोलेगा किस इंटरवल पे है. ठीक है, नाउ सो दैट इज वेरी सिंपल. नाउ अगेन वी विल डिस्कस. हम आपको क्या डिस्कस करेंगे? देखो, हमने ये वाला डिस्कस कर लिया है आपके सामने. ठीक है, सो इसके बाद हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, वो टॉपिक आपका क्या है? मैंने आपको बताया था, ये आपका एग्जाम में आता है. कॉन्वेक्स. विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर स्क्वायर आर कॉन्वेक्स. तो ये भी आपका क्वेश्चन आता है. तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके आएंगे एग्जाम में, आप क्या करेंगे? देखो, आपको करना क्या है? इसको ग्राफ बनाना है, सीधे ग्राफ से वो. ठीक है, पहला क्या है आपका? ये आपका एक्स है, ये आपका वाई. ठीक है, आपका क्या है? देखो, एक्स मॉड इज लेस देन 5. एक्स इज इक्वल टू 5 कहां होता है?
सपोज दिस इज x इज इक्वल टू 5, x mod इज लेस देन 5 मीन्स दिस वैल्यू, ओके दिस इज 0. नाउ y इज लेस देन 10, y इज लेस देन, y इज इक्वल टू 10 मीन्स ये y इज इक्वल टू 10, दिस इज y इज इक्वल टू 10 एंड लेस देन मीन्स दिस. तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो है ये ग्राफ ये आ जाएगा. आपका फर्स्ट क्या है, योर फर्स्ट इज x y कॉलन x mod इज लेस देन 5 एंड y mod इज लेस देन 10. ये आपको दे रखा है. इसका ग्राफ क्या बनेगा, आपका ये बनेगा, दिस इज योर ग्राफ. तो इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं, यहां देखो बहुत सारे पॉइंट है आपके, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट है ना. तो कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी भी दो पॉइंटों को मिलाएंगे, ठीक है, अगर उसके अंदर के सारे इनफाइनाइट पॉइंट वो पॉइंट इसी रीजन के अंदर आ रहे हैं, इट मीन्स दैट इज द कॉन्वेक्स. नाउ आप देखो जरा, कोई भी पॉइंटों को मिलाओ, देखो इसके अंदर के इनफाइनाइट पॉइंट इसके अंदर इसी रीजन में बिलोंग करेंगे, दैट इज योर रीजन. ठीक है, अब इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं. देखो सेकंड एग्जांपल क्या है, सेकंड एग्जांपल क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, सर्किल है. तो सर्किल यानी कि सर्किल है, तो इसके पॉइंट कहां है, आपके पॉइंट इस सर्किल में है. पॉइंट कहां है, इस सर्किल में है. तो अगर मैं एक पॉइंट ये लूं और एक पॉइंट ये लूं, इसके अंदर के बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट हैं जो इस सेट में नहीं है. सेट क्या है आपका, सेट क्या है, ये है, ये एक कलेक्शन ऑफ दिस पैरामीटर. ये पैरामीटर में जितने आपके पॉइंट हैं वो इज इक्वल टू 1. इसका मतलब क्या है, ऐसा सर्किल जिसके ये जो सर्किल का जो ये जो पैरामीटर है, इसके सारे पॉइंट क्या है, इस सेट के अंदर है. तो अगर मैं कोई भी दो पॉइंट मिला रहा हूं तो ये जो बीच के जो सारे पॉइंट है ये तो सेट में आ नहीं रहे हैं. इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉट कॉन्वेक्स. मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. इन क्वेश्चन नंबर थर्ड व्हाट दे हैव आस्क्ड, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो आपने देखा होगा. ठीक है, तो देखो यहां पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है तुम्हारा, हमको तो याद हो गए सारे, है ना. ये आपका x है, y है, तो y इज इक्वल, लेकिन इसने क्या बोला है, y इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर. ध्यान रखना. अब इसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई पॉइंट ले लो, सपोज 5 ले लेते हैं. ठीक है, अगर हम 5 यहां रखते हैं और यहां क्या है, यहां पॉइंट क्या होगा, ये तो 0 है. यहां पर ले लेते हैं 5 और 0 और एक्स इज इक्वल, हाँ 5 और 0, और यहाँ 0 और 5 ले लेते हैं. ये क्या है, 0 और 5. ठीक है, ये पॉइंट को यहाँ रखो, यहाँ रखो. y इज, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू 0 रखो. 0 इज ग्रेटर देन 5. क्या 0 ग्रेटर देन 5 है, क्या 5 इज ग्रेटर देन 0 है, यस. ठीक है, अब यहां रखो ये x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू. ठीक है, x इज इक्वल टू कहां रखना है, यहां पर रखना है. कहां पर, y इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो y क्या है, 0. क्या 0 इज ग्रेटर देन x यानी कि 5 का स्क्वायर है, नहीं, ऐसा इम्पॉसिबल है. यानी कि ये पॉइंट इसमें लाई नहीं कर रहा है, ये पॉइंट लाई कर रहा है, यानी कि योर रीजन इज दिस इज योर रीजन. ओके, तो इस रीजन में कोई भी दो पॉइंटों को आपस में मिलाओ, इसके सारे पॉइंट इसके अंदर ही आएंगे. ठीक है, देखो कहीं भी मिलाओ, ये मिलाओ, ये मिलाओ, कहीं मिलाओ. ठीक है, तो हमेशा ऐसे मिलेंगे, यानी कि क्या है, दिस इज ऑल्सो, दिस इज योर आंसर, दिस इज ऑल्सो कॉन्वेक्स. ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है y इज लेस देन एक्स स्क्वायर का मतलब ये आउटसाइड वाले पॉइंट, दिस पॉइंट, ये सारे पॉइंट जितने हैं तुम्हारे क्या आ रहे हैं, तुम्हारे किस में आ रहे हैं, ये दिस इज y इज लेस देन एक्स स्क्वायर. अब देखो इसमें से एक पॉइंट ये लेता हूं और एक पॉइंट ये लेता हूं और इन दोनों को मिलाऊंगा, तो ये पॉइंट तो आ रहे हैं, लेकिन ये जो पॉइंट है तुम्हारे, दीज पॉइंट डज नॉट बिलोंग टू हियर y इज लेस देन एक्स स्क्वायर फॉर दिस कंडीशन. क्योंकि ये पॉइंट, हमारा रीजन कौन सा, हमारा रीजन आउटसाइड वाला है. एक बात को ध्यान रखना, ये आउटसाइड का जितना रीजन है ये किस कंडीशन के लिए है, y इज लेस देन एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो इसके अगर मैं कोई भी दो पॉइंटों को मिला रहा हूं तो ये तो ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ये जो बीच के पॉइंट हैं ये हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यानी कि ये दिस इज नॉट योर आंसर. ठीक है, तो आपका आंसर ये भी हो गया, पहले वाला भी हो गया, ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है, और ये वाला नहीं होगा और ये वाला नहीं होगा. ठीक है, दैट इज द मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन. आपको पता होगा एग्जाम में आजकल ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं. ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आया है फिर हम एक क्वेश्चन और बता देते हैं. ठीक है, देखो ये टॉपिक आपको पूरा क्लियर होना चाहिए. ठीक है, तो हम हर टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. टॉपिक क्या है, देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक बात पूछिए, कॉम्पैक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर स्क्वायर आर कॉम्पैक्ट, ऑल्सो चेक द कॉन्वेक्स. इसमें से कौन सा कॉन्वेक्स है और कौन सा तुम्हारा क्या है,
कॉम्पैक्ट है तुम्हारा, ठीक है। दो चीज पूछे हैं आपसे, ठीक हो गया फिर, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखो x इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, x इज लेस देन इक्वल टू 1 है आपका, 1 मिनट, ठीक है। तो पहला क्या है, देखो ये तुम्हारा हम क्या करेंगे, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 कर लो, ये आपका x इज इक्वल टू 1, दिस इज x इज इक्वल टू 1, लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया, ये रीजन हो गया, ठीक है। इसके बाद y इज ग्रेटर देन 2, ये क्या है, y इज इक्वल टू 2 लाइन है ना। ग्रेटर देन 2 का मतलब ये पॉइंट हो गया तुम्हारे। अब x इज इक्वल टू लेस देन का मतलब ये देखो यहां आओ, ये रीजन आ गया आपका, क्योंकि x इज इक्वल टू लेस देन मतलब जो दोनों में क्या करता है, ओवरलैप करता है, वो रीजन क्या होता है तुम्हारा, दैट इज योर कंडीशन। सो दिस इज आपका क्या हो जाएगा, x y कॉलन x mod इज लेस देन 1 कॉमा y mod इज ग्रेटर देन 2। सो दिस इज योर दिस रीजन, ठीक है। अब देखो इसके कोई भी दो पॉइंटों को मिलाएंगे तो सीधी सी बात है, क्या है तुम्हारा, कॉन्वेक्स तो है, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बात। दूसरा क्या आता है, कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, कॉम्पैक्ट का मतलब होता है जो सेट आपका क्लोज्ड होगा प्लस बाउंडेड होगा, एक बात को ध्यान रखना, इतना ही आपको मेमोरी में रखना है। बाकी आपको ये सेट रीड करना आना चाहिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे 100%। पहला क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए और बाउंडेड होना चाहिए। देखो एक कहानी क्लोज्ड की क्या होती है, पहला कंडीशन क्या लिखा है, ये इसका मतलब क्या होता है पहले आपको मालूम होना चाहिए। इसका मतलब होता है x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, इसका मतलब ये है, ठीक है। और इसका मतलब ये भी तुम्हारा क्या हो गया, y। वो बात अलग है कि हमारा क्या है, x mod इज लेस देन 1 का मतलब क्या है, यानी कि हमारा सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होंगी, नेगेटिव वाली नहीं होंगी, इसका मतलब ये है, मॉड हो गया ना तुम्हारा। लेकिन अगर इसको खोलेंगे तो हमारा इसका मतलब ये है, ठीक है। और जब भी अगर आपको ऐसा मिलेगा ना, ऐसा ये ऐसा मिलेगा, इट मीन्स दैट क्लोज्ड। जैसे मैं लिखूंगा 1 और -1, इसका मतलब क्या है, क्लोज्ड। अगर मैंने कह दिया 1 -1, सॉरी ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव है ना, -1 और +1, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो इसका मतलब क्या है, ओपन है। तो ओपन का मतलब क्या है कि ये पॉइंट -1 और 1 इसमें नहीं है, इसका मतलब क्या है, आपका 0 है, ठीक है। और ये आपका क्या है, 1 है, और ये आपका क्या है, -1 है। यानी कि इस ओपन इंटरवल में ये 1 और -1 नहीं है, बाकी सारे हैं इसके अंदर की। ये 1 और -1 इसके अंदर नहीं है, बाकी सारे हैं, इसका मतलब ये है। अब अगर ये दोनों पॉइंट हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये होगा इक्वल टू, है ना। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज्ड। तो आपका क्या है, y इज ग्रेटर देन 2, यही चीज आप यहां भी करेंगे, y इज ग्रेटर देन 2 है ना, और इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो आपका क्या है, ये दूसरा वाला पॉइंट। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा आपका, दैट इज हमने क्या बोला, क्लोज्ड होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। अब आपको दिख रहा है ये ऊपर तक इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो बाउंडेड तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि देखो ये x इज लेस देन 1 और y इज ग्रेटर देन 2। अब ग्रेटर देन 2 यानी कि इनफाइनाइट को भाग रहा है, इट मीन्स दैट दिस इज नॉट कॉम्पैक्ट। क्लोज्ड भी होना चाहिए, बाउंडेड भी होना चाहिए, बात को ध्यान रखना। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक सेकंड में क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, x इज लेस देन 1। x इज लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा, यानी कि ये रीजन आ गया, x इज लेस देन 1। फिर दूसरा क्या है, y स्क्वायर इज लेस देन 2, y मॉड स्क्वायर इज लेस देन 2, ये पूछा है। इसको छोड़ो आप, मॉड का मतलब ही पॉजिटिव होता है, y इज लेस देन 2। अब देखो अगर y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होगा तो y इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा नहीं होगा। तो इस कंडीशन में तुम्हारा क्या हो गया, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, एक ये आपका आ गया, और y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, एक ये आ गया आपका, ठीक है। तो ये जो रीजन आ गया तुम्हारा, इसने क्या बोला, लेस देन बोला है, यानी कि नीचे वाला, है ना। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मतलब क्या है, ये लाइन होगी, ये आपकी 0 है, ये आपका y हो गया, ये आपका क्या है, x है। तो ये जो रीजन है यानी कि नीचे वाला, और ये वाला, और ये आपका क्या है, लेस देन 2। तो यानी कि ये जो रीजन है तुम्हारा, ये रीजन किसको बता रहा है, इसको बता रहा है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब देखो इसने क्या बोला है, आपको साफ दिख रहा है कि इसके कोई भी दो पॉइंटों को अगर हम मिलाएंगे तो सारे पॉइंट इसी के अंदर आएंगे, इट मीन्स दैट दिस इज ऑल्सो कॉन्वेक्स, नो प्रॉब्लम। दूसरा बोला है, मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी अगर ऐसी कंडीशन होगी ना,
इसका मतलब क्लोज्ड है, क्लोज तो है ही, कोई दिक्कत नहीं, साफ दिख रहा है तुमको, है ना। और दूसरी बात क्या बोली हमने, बाउंडेड, आपको साफ दिख रहा है कि ये जो बॉक्स है बाउंडेड है, यानी कि इसके अंदर के जो सारे पॉइंट क्या हैं इसी बॉक्स के अंदर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट को ये भाग नहीं रहा है, आपने देखा होगा ये खुला है, ये क्या बंद है, बंद है, तो इसका मतलब क्या है, ये कॉम्पैक्ट है, सो दिस इज द कॉम्पैक्ट। ठीक है, कॉन्वेक्स ये भी है, कॉन्वेक्स ये भी है, लेकिन ये कॉम्पैक्ट भी है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आता है, देखो ये आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3y² इज लेस देन इक्वल टू 5। आपने सुना होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एक ये सुना होगा। ठीक है, एक ये सुना होगा और एक ये सुना होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये सुना होगा। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा तो देख लो। तो इज इक्वल टू जो भी आपने लिखा है, इज इक्वल टू जो भी लिखा है आपने। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या है, देखो पहला वाला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3y² इज लेस देन 5। इसी कंडीशन के अनुसार क्या आ गया आपका, एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसको नीचे ले आऊंगा तो, अगर मैं इसको नीचे ले आऊंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 5 आ जाएगा, इसको यहां ले आओ, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या हो गया आपका, इसको देखो, यानी कि इसको 5/3 लिख सकता हूं ना। और ये क्या है, इज लेस देन 5 है, लेस देन 5 यानी कि लेस देन 1, ऐसा कर सकते हैं हम, है ना। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर अपॉन आ गया और इसको भी अपॉन लाए, हमने 5/3 कर दिया, ऐसा हो गया। अब आपको दिख रहा है क्या है, व्हाट इज दिस, ये आपको दिख रहा है क्या है, ये अगर प्लस होता है तो क्या होता है, इलिप्स होता है, तो आपका एक इलिप्स हो गया, है ना, इलिप्स हो गया, ये आपका इलिप्स हो गया, सॉरी डिजाइन अच्छा नहीं बना, ये आपका एक्स हो गया, वाई हो गया। ठीक है, ये आपका इलिप्स हो गया, तो ये स्क्वायर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, है ना, इसको हम ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो है चीज वही। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज √5/3 और ये क्या हो जाएगा, √5, ये पॉइंट। ठीक है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। ठीक है, तो ये क्या है, ये इलिप्स को बता रहा है, इसके कोई भी दो पॉइंटों को मिलाओगे इसके अंदर ही आएंगे, कॉन्वेक्स है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है कॉम्पैक्ट, आपको दिख रहा है कि इसके अंदर सारे पॉइंट इसी के अंदर हैं, सारे पॉइंट क्या हैं, इसी के अंदर है, बाउंडेड भी है और क्लोज्ड भी है ना, साफ दिख रहा है आपको, ये आपका क्या अनबाउंडेड था, ये आपको साफ दिख रहा है बाउंडेड भी है क्लोज्ड भी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज कॉम्पैक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, मैं इसको आपको यहां बता देता हूं, बिकॉज देयर इज नो पेज। ठीक है, लास्ट क्या है आपका, एक्स स्क्वायर, एक काम करते हैं इसको यहां ले आते हैं, माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन 5, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर अपॉन 5 कर दिया, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5 कर दिया, इज लेस देन 1 हो गया, नो प्रॉब्लम। अब मैंने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर इज लेस देन 1, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये क्या है, हाइपरबोला है, हाइपरबोला कैसा होता है, ऐसा होता है। तो √5 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया और आपका ये हो गया, यानी कि ये क्या है, माइनस √5 है और ये क्या है, √5 है। ठीक है, और ये आपका क्या है, 0 है, ये y है, ये x एक्सिस है। ठीक है, तो ये आपका ये सारे पॉइंट ये हो गए, सारे पॉइंट ये हो गए। अब आपको पता है, अगर मैं इसमें से एक पॉइंट लूं और एक पॉइंट यहां से लूं और इन दोनों को मिलाऊंगा, है ना, तो ये जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट है ना, ये मेरा सेट खाली इतना है, ये मेरे नहीं आ रहे हैं तुम्हारे। इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉट कॉन्वेक्स, दिस इज नॉट कॉन्वेक्स, ध्यान रखना इस चीज को। उसके बाद हमसे पूछा है कॉम्पैक्ट, आपको पता है कि ये कहां को जा रहा है, इनफाइनाइट को जा रहा है और ये भी इनफाइनाइट को जा रहा है, तो है ना, तो ये इनफाइनाइट को जा रहा है और ये भी इनफाइनाइट को जा रहा है, तो यानी कि बाउंडेड तो नहीं है, बाउंडेड तो नहीं है। अब क्लोज्ड छोड़ दो, है ना, ये जहां आ जाएगा क्लोज्ड हो जाएगा, वो अलग बात है ना, क्लोज्ड है वो बात छोड़ो, लेकिन बाउंडेड नहीं है, तो ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पैक्ट एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स। तो मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है, मुझे लगता नहीं कि यहां से कोई क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक और आता है तुम्हारा, कनेक्टेड के बारे में आता है। ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो कॉम्पैक्ट वाला है तुम्हारा,
है ना। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने देखा है, बहुत बार पूछा जाता है। 1 मिनट, समवन कॉलिंग, ठीक है। तो देखो तुम्हारा क्या होगा, क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या पूछा है आपके एग्जाम में। आपसे एग्जाम में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कनेक्टेड। कनेक्टेड का मतलब देखो सिंपल डेफिनेशन है, कनेक्टेड का मतलब है कनेक्टेड। आर यू कनेक्टेड विद योर वाइफ, ठीक है। कनेक्टेड यानी कि दोनों टच कर रहे हैं, कनेक्टेड का मतलब टच कर रहे हैं, ध्यान रखना चीज को, टच करना ही कनेक्टेड हो गया, खत्म कहानी, डेफिनेशन खत्म। दिया है इसने, कुछ दिया है तुम्हारा CAR इज इक्वल टू दे रखा है करली ब्रैकेट XY बिलोंग टू R², यानी कि ये हमारा R² बिलोंग कर रहे हैं। सच दैट, ऐसे कॉमा करो, सच दैट करो, बात एक ही है, X - A का स्क्वायर प्लस Y² इज इक्वल टू R², ऐसा हमको दे रखा है। तो देखो एग्जाम में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, चीजों को समझना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो आपका पहला दे रखा है C01, ठीक है। तो C01 का मतलब क्या होगा, इस कंडीशन के अनुसार, इस कंडीशन के अनुसार ये दिया है हमको, ठीक है। यानी कि पहला क्या है आपका, A है फिर R है, यानी कि ये R है, इसका मतलब A क्या है, 0 है, यानी कि खाली X² आएगा, क्योंकि X - 0 इसका स्क्वायर प्लस Y² बराबर क्या दे रखा है, R², यानी कि 1, ये हो गया इसका मतलब। दूसरा C02 का मतलब क्या होगा, यानी कि रेडियस 2 है, ये भी ऐसे ही हो जाएगा, X² प्लस Y² इज इक्वल टू 2, हो गया, खत्म कहानी। अब हम क्या करेंगे, देखो अब गौर से देखो इसको, इसका मतलब क्या होता है सर्किल, इसका मतलब क्या होता है सर्किल। हमने क्या किया, यानी कि एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर 0 है और जिसका रेडियस 1 है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। इसका मतलब एक ऐसा सर्किल जिसका रेडियस सेंटर 0 है और रेडियस 2 है, यानी कि ऐसा सर्किल। अब देखो क्या ये सर्किल और ये सर्किल का मतलब है बराबर, का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, यानी कि ये इनफाइनाइट पॉइंट जो इसके पैरामीटर में है तुम्हारे, ये सर्किल का मतलब यहाँ इज इक्वल टू का मतलब होता है ये जो सारे इनफाइनाइट, इसके अंदर का मतलब नहीं है हमको, ये जो इनफाइनाइट, ध्यान रखना इन तीनों में बहुत अंतर है। एक है X² प्लस Y² इज इक्वल टू 1, X² प्लस Y² इज लेस देन 1, X² प्लस Y² इज ग्रेटर देन 1। जमीन आसमान का अंतर है तीनों में। कैसे, एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको मैं। ये आपका सर्किल है, ये आपका क्या है, सर्किल है, ये 0 है, ये आपका 1 है, ठीक है, और ये आपका -1 है। तो इस सर्किल में ये जो पैरामीटर है, इसमें इनफाइनाइट जो पॉइंट है तुम्हारे, ये इसका मतलब है X² प्लस Y² इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये है। अब इस सर्किल के अंदर बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है अंदर, यानी कि X² प्लस Y² इज लेस देन 1, या ये बोलो, या X² प्लस Y² इज लेस देन 1। इसका मतलब सारे पॉइंट तो होंगे लेकिन इसको टच नहीं करेगा, 1 को टच नहीं करेगा, इसका मतलब अगर खाली ऐसा है, यानी कि क्या है, ओपन इंटरवल, इसका मतलब ओपन होता है, इसका मतलब क्लोज्ड होता है, ध्यान रखना इस चीज को। इसके बाद इस सर्किल के बाहर ही बहुत सारे पॉइंट हैं, देख रहे हो तुम, बहुत सारे पॉइंट इसके बाहर भी हैं। तो जो बाहर वाला है क्या बोलेगा, X² प्लस Y² इज ग्रेटर देन 1, एक ये होगा, और एक होगा X² Y² इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या है, 1 वाला पॉइंट, यानी कि सर्किल का जो पैरामीटर है, सरकमफ्रेंसेस है, ये इसको टच नहीं करेगा, इन सारे इनफाइनाइट पॉइंट को टच नहीं करेगा, इसका मतलब। और इसका मतलब टच करेगा, 1 को भी टच करेगा, यानी कि ये सारे पॉइंट तो होंगे इनफाइनाइट के, लेकिन साथ में इस पैरामीटर के पॉइंट भी होंगे, इसका मतलब पैरामीटर के पॉइंट यानी कि सरकमफ्रेंस के पॉइंट नहीं होंगे। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस एंड दिस, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन में, यानी कि ये आपस में टच नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये इनफाइनाइट पॉइंट और ये इनफाइनाइट पॉइंट आपस में टच नहीं कर रहे हैं। तो टच नहीं कर रहे हैं यानी कि ये अलग है, ये अलग है। आपने देखा होगा जैसे तलाक देते हैं, डाइवोर्स, तो डाइवोर्स होने के बाद पति अलग पत्नी अलग, दोनों आपस में टच नहीं है, तो कनेक्टेड नहीं है। तो कनेक्टेड नहीं है तो यानी क्या हो जाएगा, नॉन कनेक्टेड हो जाएगा। यानी कि जो लोग डाइवोर्स देते हैं वो क्या होते हैं, नॉट कनेक्टेड होते हैं, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक हो गया फिर। और डाइवोर्स अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएंगे, है ना, वाइफ और दोनों साथ रहेंगे, है ना, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक हो गया फिर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, तो ये वाला तुम्हारा क्या है, कनेक्टेड नहीं है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है देखो आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है देखो, वो भी सेम क्वेश्चन है। पहला क्या दे रखा है, C01 और दूसरा दे रखा है C1 और 3। बहुत फास्ट समझो। ए का मतलब क्या होता है, ये X - A, यानी कि X² प्लस Y² इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये 1 का मतलब क्या है,
1 का मतलब आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर। फिर दूसरा है, देखो यहां 1 दे दिया, यानी कि क्या हो गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ए आर यानी कि आर स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन सही होगा जो भी होगा, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, देखो अगर हम इसका वो बनाएंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि आपका सर्किल ये हो गया। और इसका मतलब क्या है, x माइनस 1 का मतलब क्या है, यानी कि x में 1 कहां पर है, 1 यहां पर है, एक ये हो गया। y क्या है, 0, है ना। x एक्सिस में देखो ध्यान रखना, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तुम्हारा, ये सर्किल है, कहीं पर भी हो सकता है, इसका जो पॉइंट है तुम्हारा ए बी है, मतलब सेंटर ए और बी है और रेडियस आर है, रेडियस आर है। इसका मतलब ये होता है द मीनिंग ऑफ दिस। अब देखो 1 x माइनस ए 1 यानी कि 1 ये हो गया, ठीक है। दूसरे वाले का 1 और 0 और रेडियस कितना है 3 3 9, तो यानी कि यहां होगा, यानी कि ऐसा कुछ हो जाएगा तुम्हारे, समथिंग ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, बना लेना इसको। तो 9 हो गया, यानी कि 9 कहीं पर होगा, लेकिन इसका सेंटर यहां पर है, कहां पर, 1 पर सेंटर है इसका, 1 0 पर, 1 0 पर सेंटर है, ध्यान रखना 1 0 पर सेंटर है, क्योंकि यहां कुछ नहीं है, 0 है। तो आपको दिख रहा है कि ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है इनको टच कभी नहीं कर सकते, तो ये कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड नहीं है। और अगर आपसे कॉन्वेक्स पूछेगा, ये क्या कॉन्वेक्स है, नहीं है, कॉन्वेक्स भी नहीं है पहला, दूसरा भी कॉन्वेक्स नहीं है। आप ये भी देख सकते हैं कॉन्वेक्स भी नहीं है। तीसरा तो आपका पॉइंट क्या है, C01, तीसरा पॉइंट को देखो जरा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, C01, C01 वाला पहले बना रखा है मैंने, 1 1 वाला देख लो, 1 1, C1 और 1 1 1 वाला क्या हो जाएगा आपका, यानी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन, सॉरी इक्वल टू है, तो इक्वल टू 1, यानी कि ऐसा रेडियस, ऐसा सर्किल जिसका सेंटर 1 0 है और रेडियस 1 है, रेडियस 1 है, यानी कि इसको टच करेगा, ये सर्किल हो गया। किसके लिए, इसके लिए। दूसरा क्या है, C01 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सेंटर 0 0 पर है, ठीक है, सेंटर 0 0 पर है, लेकिन रेडियस कितना है तुम्हारा, 1 है, यानी कि ये हो गया। आपको साफ दिख रहा है कि दोनों सर्किल आपस में टच कर रहे हैं, आपको दिख रहा है दोनों सर्किल टच कर रहे हैं, बोथ टच ईच अदर, इट मीन्स दैट दिस इज योर कनेक्टेड। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया हो कनेक्टेड का मतलब क्या है। इसका लास्ट जो पॉइंट है आपका, लास्ट पॉइंट क्या है, देखो C01, ठीक है, और दे रखा है C2 और 1, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका मतलब x माइनस 0 एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि आपको दे रखा है x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, इज इक्वल टू, दूसरा क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहां 1 रहेगा। इसका मतलब क्या है, देखो आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि सेंटर 0 है और आपका रेडियस 1 है, आपका ये हो गया, है ना। इसके बाद देखो सेंटर कहां है, 2 पर है, यानी कि 1 ये है, तो अगर 2 ये है, और 2 और 0, ये आपका क्या है, 1 और 0, और रेडियस कितना है, 1 है, रेडियस 1 है, यानी कि इसको टच करेगा, ये हो गया। तो एक आपका ये हो गया, एक ये हो गया पॉइंट। अब अगर हम पूछेंगे क्या ये दो पॉइंटों को अगर हम मिलाएंगे, क्या ये दोनों पॉइंटों के सारे पॉइंट इसके अंदर आते हैं, नहीं आते हैं, क्योंकि सेट में आपका पॉइंट कौन से हैं, ये वाले हैं और ये वाले हैं, तो दीज आर नॉट कॉन्वेक्स, दीज आर नॉट कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आता है कनेक्टेड, क्या ये कनेक्टेड है, ठीक है, तो कनेक्टेड के लिए क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, आपको दिख रहा है कनेक्ट है फर्स्ट क्लास, ठीक है, तो दिस इज द कनेक्टेड सेट। आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड, सो दिस इज योर कनेक्टेड सेट, ठीक है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया, मैं एक और बता देता हूं, ठीक है। लास्ट पॉइंट है आपका, ये भी क्वेश्चन सेम है तुम्हारा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, लेट DABR आपको दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, लेट DABR इज इक्वल टू XY, आपको ये दे रखा है। मैं एक दूसरा पेज लूंगा, ठीक है, क्या दे रखा है आपको, अगर नहीं दिखाई दे रहा है, क्या लिया है,
एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस ए, ध्यान रखना हम कंप्यूटर वाले हैं तो हम इसको कॉलन कहते हैं, दिस इज सच दैट, ठीक है, प्लस मैथमेटिक्स में वाई माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन आर, ये आपका ये है, ठीक है। तो आपका क्या हो रहा है, ये कनेक्टेड होगा, कॉन्वेक्स होगा, सब पूछ रहा है आपसे। तो देखो पहला है D00, इसके अनुसार D00 क्या होगा, और ये बराबर क्या है, ध्यान रखना D A B और R, ये बराबर ये है, ठीक है। तो पहला आपको D001, इसका मतलब क्या है, देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। x माइनस अगर ए बी 0 है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इज लेस देन रेडियस 1, यानी कि ये क्या है आपको जानते हैं, ये मैंने बता रखा आपको क्या है। दूसरा दे रखा है यूनियन 10, यानी कि सेट है, ध्यान रखना, ये जब भी ऐसा बनाया होगा तो इसका मतलब सेट है, ध्यान रखना। फिर दूसरा दे रखा है D2 और 0 और 1, इसका मतलब क्या है, देखो x माइनस 2, यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई में तो कुछ है ही नहीं, 0, इज लेस देन 1। अब इसका बनाओ, सर्किल बनाओ। तो पहला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1, ये आपका सर्किल है, ये आपका 0 है, और लेस देन 1 यानी कि इसके अंदर के सारे पॉइंट, ध्यान रखना 1 नहीं है इसमें, ठीक है, पहला। दूसरा क्या है, x माइनस 2, यानी कि 2 कहां पर है, ये 1 है, ये 2 है, 2 0, ये पॉइंट हो गया, लेस देन 1 यानी कि इसको टच करेगा, ये सर्किल बन गया, लेकिन लेस देन 1 बोला है यानी कि इसको ऐसा हो जाएगा, इसके अंदर ये पॉइंट आ जाएंगे। पहला है, क्या ये कॉन्वेक्स है, अगर मैं कोई भी दो पॉइंटों को मिलाऊंगा तो तुम जानते हो ये तो आई नहीं है ही नहीं तुम्हारा लेस देन 1, ये दोनों क्या है, लेस देन 1 है, ओपन इंटरवल, यानी कि यहां पर एक पॉइंट आ जाएगा जो इसमें नहीं है, पहली बात। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है उसने, 1 0 भी है, यानी कि 1 0 पॉइंट है तुम्हारा, वो भी इसके अंदर है। तो यानी कि 1 0 ये पॉइंट भी है और ये सारे पॉइंट भी हैं, सारे पॉइंट यानी कि सब आ गया तुम्हारा। लेकिन अगर मैं यहां से अगर दो पॉइंटों को आपस में मिलाऊंगा, दिस इज नॉट, तुम्हारा क्या है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ये इनफाइनाइट पॉइंट इसमें नहीं आ रहे हैं सेट के अंदर, सेट हमारा इतना है और इतना है, इट मीन्स दैट क्या हो जाएगा आपका, ये तुम्हारा क्या है, कॉन्वेक्स नहीं है, पहली बात। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, आपको कॉम्पैक्ट बताया था, क्लोज्ड एंड बाउंडेड होना चाहिए। तो इसमें देख लो 1 तो इसमें है ही नहीं, ठीक है, कॉम्पैक्ट भी नहीं है, ये कॉम्पैक्ट भी नहीं है, क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकता है, पहली बात। दूसरा, तीसरा आपसे मैंने क्या बताया, मैंने आपको कनेक्टेड में आप देखो ये जो सारे पॉइंट हैं, ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ कनेक्ट हैं तुम्हारे, आपको साफ दिख रहा है कनेक्टेड है, क्योंकि 1 0 इसमें है। अगर मैं इसमें से 1 0 निकाल दूंगा, किसमें से, इसमें से, तो ये कनेक्टेड नहीं होगा। तो यानी कि ये पहला आंसर आ गया तुम्हारा, दिस इज द कनेक्टेड, ठीक हो गया फिर, है ना। अब यहां पर दूसरा टॉपिक आता है, माना अगर आपको समझ में नहीं आया, फिर दूसरा क्वेश्चन देखो, मैं दोबारा कागज ले रहा हूं आपके पास, देखो क्या दे रखा है, पहला D001, ये मैंने आपको बताया क्या है इसका मतलब, ठीक है, यानी कि हमारे क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्योंकि ये तो है ही नहीं, वाई स्क्वायर क्योंकि ये है ही नहीं, लेस देन 1, ये आपका बन गया, बता दिया मैंने। दूसरा है यूनियन D20 और आपका 1 इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1। अब इसको देखो, बनाओ इसको। तो हमने क्या किया, ये आपका x हो गया, ये y हो गया। पहला आपका क्या दे रखा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और लेस देन 1, यानी कि इसके अंदर के सारे पॉइंट आ गए, खत्म कहानी। दूसरा है x माइनस 2, ये आपका क्या है, 1 0 है, ध्यान रखना, ये तुम्हारा क्या है, 2 0 है, ठीक है। तो यानी कि इस सर्किल का सेंटर यहां आ जाएगा, और रेडियस कितनी, 1 है, ये रेडियस 1 हो गई, ठीक है, ये हो गया। लेकिन ये लेस देन 1 है, यानी कि इसके अंदर के सारे पॉइंट, लेकिन ये पॉइंट, ये 1 0 जो नहीं है तुम्हारा 1 0, ये 1 0 हमारे सेट के अंदर है ही नहीं, ये 1 0 हमारे सेट के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉट कनेक्टेड, ये कनेक्टेड नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आता है कनेक्टेड, मैंने आपको बता दिया कनेक्टेड क्या होता है, ठीक है। दूसरा मैंने बताया कॉम्पैक्ट, बताया था मैंने आपको, कॉम्पैक्ट क्या होता है, कॉम्पैक्ट का मतलब क्लोज्ड और बाउंडेड, आपको साफ दिख रहा है, ये क्लोज्ड नहीं है, ये क्लोज्ड नहीं, क्यों, क्योंकि लेस देन 1 है। अगर मैं इसको ऐसा कर दूंगा ना, ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा और बाउंडेड हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो ये कॉम्पैक्ट भी नहीं है, ठीक है। जहां पर भी आपका ऐसी कंडीशन होगी, कॉम्पैक्ट बिना देखे सीधे कॉम्पैक्ट नहीं है, खत्म कहानी। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखो थर्ड क्वेश्चन यही बना देते हैं। थर्ड आपका D00 मैंने आपको बता दिया है, D00 इज इक्वल टू क्या होता है, D001 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1। दूसरा आपको दे रखा है यूनियन 1 0 भी है, और D02 का मतलब क्या होता है, D021 का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस
y माइनस टू का होल स्क्वायर इज लेस देन 1, क्योंकि रेडियस आपका 1 है। इसका मतलब क्या हो गया, सर्किल देखो आप, देखो यहां पर क्या है कि आपका सर्किल तो यह है, ठीक है, यानी कि ये 0 है 0, ठीक है, और ये आपका 1 हो गया, और दूसरा दे रखा y माइनस टू 0, यानी कि y में 2, यानी कि 1 2, y माइनस 2, और ये तुम्हारा यहां है, यानी कि क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एक सर्किल ये हो गया, एक सर्किल ये हो गया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ये बना लिया हमने, ग्राफ बनाना आना चाहिए आपको, ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे हमने बनाया, अब देखो ये पॉइंट हमारे इसमें नहीं है, ये कौन सा पॉइंट है, एक्स तुम्हारा 0 है 1, 0 1 डज नॉट बिलोंग टू अवर, लेकिन 1 0 है, यानी कि x इज इक्वल टू 1, और ये यानी कि ये पॉइंट है हमारे इसमें, यानी कि ये 1 0 है, लेकिन 0 1 नहीं है। अगर 0 1 इसमें होता तो ये कनेक्टेड होते, ये कनेक्टेड नहीं होगा, कहानी खत्म। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, ये कनेक्टेड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका लास्ट है, आपका 4 क्या बोल रहा है, d0 0 d0 0 1, मैंने आपको बताया इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1, कहानी खत्म। दूसरा क्या दे रखा है, यूनियन दे रखा है d0 2 और 1, 0 2 और 1 का मतलब क्या हुआ, ये बताया मैंने, 0 2 1 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज लेस देन 1, ये मैंने अभी पहले बता दिया तुमको। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम ही है, ठीक है, इसका ग्राफ भी तुम्हारा सेम है, ये सेम ग्राफ है और कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। उसमें क्या दे दिया था, 1.10 यहां दे दिया था, देना क्या चाहिए था 0 1, अगर 0 1 यहां पर होता तो क्या होता, कनेक्टेड होता, लेकिन है ही नहीं, और ये तो आपस में खुद ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और मैंने आपको बताया कि जहां पर ऐसा होता है तो कॉम्पैक्ट के बारे में तो सोच ही नहीं सकते, ध्यान रखना, कॉम्पैक्ट, ठीक है, और कनेक्टेड, मैंने आपको सारे सी बता दिए हैं, कॉम्पैक्ट, कनेक्टेड, क्लोज्ड के बारे में बता दिया है, कनेक्टेड के बारे में बता दिया है, कॉम्पैक्ट के बारे में बता दिया है, और लास्ट आपको क्या बताया था मैंने, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो मैंने आपको सारे सी बता दिए हैं, वी हैव टीच यू एवरीथिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पैक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कनेक्टेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्वेक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉनकेव, ऑल द डेफिनेशन वी हैव क्लियर। और ये सारे क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर एग्जाम में आए हैं, ध्यान रखना, ये सारे आपके कंपटीशन में आए हैं, गेट नेट जो भी जहां जहां क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे सब जगह आए हैं, डोंट मिस इट, ठीक है। ओके, थैंक यू।